Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work regularly and properly. Students, before starting today's work, I want to share a thought with you. Listen carefully. Education is the key to unlock the door of success. एजुकेशन ही वो एक चाबी है जो कि हमारे लिए सफलता के मार्ग खोलती है। बच्चों, आप अपनी एजुकेशन को बड़े अच्छे तरीके से प्राप्त करिए। इसमें आप अपने आप को संवार सकते हो, आपका फ्यूचर गोल्डन बनेगा। Let's start today's work. Today we will discuss summary of chapter 6 from our book Hornbill. The name of the chapter is The Browning Version, written by Terence Rattigan. Terence Rattigan, full name is Terence Mervyn Rattigan. He was a British dramatist. He was one of the most popular English dramatists in the middle of 20th century. He was born on 9 June 1911 in United Kingdom. He died in 1977. Actually, this play is an excerpt from his play The Browning Version. Let's discuss about the characters. Number 1, Mr. Croker Harris. He is a middle-aged school teacher. He is a very strict and disciplined teacher. He follows rules and regulations with all sincerity. Number 2, Mr. Frank. He is a young school teacher in the same school. Which same school? In which Croker Harris teaches. He does not care for rules and regulations. Means दोनों क्या है? Contradictory characters है, contradictory teachers हैं. Number 3, Teplo. He is a student of Mr. Croker Harris in the lower 5th class. Next is Millie. She is Mr. Croker Harris's wife. She is a thin woman and is in her late 30s. In her late 30s means क्या है? She is 38 or 39 years old. She dresses herself in smart clothes. She is different from other teachers' wives. She always like fashionable clothes. Students, let's take an introduction of the play. In this one-act play, we find two contradictory teachers. Both are opposite in their views, in their attitudes, in their age also. Where Croker Harris is middle-aged, when Mr. Frank is a young teacher, and both think in the different way. In the whole play, we find conversation between Teplo and Mr. Frank. Mr. Frank felt jealous when he found Teplo following the rules and regulations told by Croker Harris. He felt very jealous of Croker Harris, and he motivated Teplo to imitate Croker Harris, and in the end we find Millie, and both Teplo and Mr. Frank think that Millie has listened all their conversation, but Millie did not reveal this, and she sent Teplo for getting medicine. Let's discuss the detailed summary of this play. इन द वेरी स्टार्टिंग, बिल्कुल शुरुआत में हम पाते हैं टेप्लो इंतजार कर रहा है स्कूल में। ब्रिटिश स्कूल है ये एक, और यहाँ पर टेप्लो इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है अपने टीचर का। कौन से टीचर का? मिस्टर क्रोकर हैरिस का। और ये सेशन का लास्ट डे है, इससे सत्र का आखिरी दिन है। एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट नेक्स्ट डे आने वाला है। फिर भी क्रोकर हैरिस ने टेप्लो को एक्स्ट्रा वर्क दिया है पनिशमेंट के तौर पर। क्यों? क्योंकि टेप्लो लास्ट वीक बीमार होने की वजह से एक दिन स्कूल नहीं आ पाया था।
इसलिए मिस्टर क्रोकर हैरिस, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हैं, उन्होंने टेप्लो को पनिशमेंट दी कि वो एग्जाम खत्म होने के बाद आएगा, उससे मिलेगा और जो लेसन उसका छूट गया था, जिस दिन वो नहीं आया था स्कूल में, उसको कंप्लीट करेगा। अब टेप्लो इंतजार कर रहा है किसका? क्रोकर हैरिस का, अपने टीचर का, जो कि उसका क्लास टीचर है। तभी उसी टाइम मिस्टर फ्रैंक है, वो वहां पर पहुंच जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक अब टेप्लो से पूछते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? फ्रैंक कहता है कि नहीं जानता, तुम इसी स्कूल में टीच करते हो क्या? तब टेप्लो बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ। तो फ्रैंक कहता है कि मैं इसी स्कूल में टीचिंग करता हूँ और मैं हायर क्लासेस को पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस का टीचर हूँ। अब वो टेप्लो से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों हो? तो टेप्लो बताता है कि मेरे टीचर ने मुझे पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पर बुलाया है, मुझे काम करके तभी जाना है। फिर वो पूछता है किस टाइम आने के लिए बोला था? तो बताता है टेप्लो कि मुझे 6:30 का टाइम दिया था। तो फ्रैंक मुझे बोलता है अब तो 6:40 हो गए हैं, 10 मिनट्स ज्यादा हो गए हैं, शायद क्रोकर हैरिस नहीं आएंगे, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। बट टेप्लो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, इतना साहस नहीं है मुझमें कि मैं अपने टीचर की अवज्ञा करूं, उनकी आज्ञा का पालन ना करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो फ्रैंक को ईर्ष्या हो जाती है, वो इन्वियस फील करता है कि बच्चे इतने अधिक कैसे क्रोकर हैरिस की बात को मानते हैं, क्यों बच्चों के ऊपर उसका इतना होल्ड है। अब वो उससे पूछना शुरू कर देता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट डे रिजल्ट है। तो फ्रैंक टेप्लो से पूछता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या रहने वाला है। टेप्लो कहता है मुझे नहीं पता क्या रहने वाला है रिजल्ट का। जो हमारे टीचर हैं क्रोकर हैरिस, वो कभी भी समय से पहले रिजल्ट को नहीं बताते हैं टीचर्स को। तो फ्रैंक पूछता है क्या तुमने पूछा था टीचर से? टेप्लो कहता है हाँ, मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि टेप्लो, जो तुम डिजर्व करते हो उतना ही मैंने तुम्हें दिया है, ना तो कम दिया है ना ही ज्यादा दिया है। मीन्स जितने मार्क्स तुम्हें आने चाहिए उतने ही मैंने तुम्हें दिए हैं। ऐसा कहकर के टेप्लो बताता है, एक तरह से इमिटेट करते हुए क्रोकर हैरिस की। तब फ्रैंक को अच्छा फील होता है क्योंकि वो दूसरे टीचर की इमिटेट कर रहा है बच्चा। फ्रैंक उसको और मोटिवेट करता है, कहता है एक बार फिर कहिए, उसी लहजे में कहिए जिस लहजे में क्रोकर हैरिस ने तुम्हें बोला है। अब टेप्लो फिर से इमिटेट करते हुए बोलता है कि टेप्लो, तुम जितना डिजर्व करते हो उतने ही मार्क्स मैंने तुम्हें दिए हैं, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। इस तरह से वो बोलता है। और फिर फ्रैंक टेप्लो से पूछता है, यदि तुम पास हो गए तो तुम आगे क्या पढ़ने वाले हो? तो टेप्लो कहता है कि मैं साइंस पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जो एक लिटरेचर की बुक है उसके हाथ में, कहता है ये मुझे पसंद नहीं है। तो उससे पूछता है क्यों पसंद नहीं है? तो टेप्लो कहता है शायद बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस वे से ये लिटरेचर पढ़ाया जाता है वो समझ में कम आता है। इसमें बहुत सारे यूनानी वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी समझ से बाहर हैं। इस तरह से टेप्लो उसको कहता है कि मुझे लिटरेचर पसंद नहीं है और मैं साइंस पढ़ना चाहूंगा। अब फ्रैंक, जो कि साइंस का टीचर है, वो कहता है कि हाँ, साइंस में तो हर बार ऐसे ही डल स्टूडेंट्स ही आते हैं। कहता है मेरी बिल्कुल साइंस में रुचि नहीं है, फिर भी मैं साइंस पढ़ाता हूँ। इस तरह से दोनों बातें करते हैं। फिर टेप्लो को और उकसाता है फ्रैंक कि ये क्रोकर हैरिस की और बुराई करे, उसकी बुराई करने के लिए उकसाता है। तो टेप्लो बताता है कि एक बार क्रोकर हैरिस ने क्लास में एक जोक सुनाया था जो कि लैटिन लैंग्वेज में था और किसी को भी वो जोक समझ में नहीं आया था। सिर्फ मैं इसलिए, कोई भी नहीं हंसा था, परंतु सिर्फ मैं अकेला इसलिए हंस दिया था कि जो क्रोकर हैरिस जो मेरे टीचर हैं उनको लगे कि जोक हंसने के लिए था तो कोई तो हंसा। तो टीचर ने समझा कि मुझे वो जोक समझ में आ गया और उसने मेरे को कहा कि बाकी कक्षा को मैं ये जोक समझाऊं, जबकि मुझे लैटिन लैंग्वेज का वो जोक समझ में नहीं आया था। इस तरह से बात करते हैं। फिर दोनों टीचर्स का कंपैरिजन दिखाया है कि जो मिस्टर क्रोकर हैरिस है पुराने विचारों का है, स्ट्रिक्ट टीचर है, रूल रेगुलेशंस को पूरी तरह से फॉलो करता है, जबकि जो फ्रैंक है वो यंग है, रूल रेगुलेशंस की परवाह नहीं करता, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल करके रहता है, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। और शायद वो सोचता है कि शायद यही कारण है
कि जो बच्चे हैं वो मेरी इतनी ग्रिप नहीं है उनके ऊपर, मेरी इतनी पकड़ नहीं है, जबकि क्रोकर हैरिस से बच्चे इतने अधिक डरते हैं। अब वो टेप्लो को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, उनके आने का टाइम हो चुका है, वैसे भी उनका लास्ट दिन आज स्कूल में है, कल से वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं, तो शायद वो बिजी होंगे, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। परंतु टेप्लो कहता है नहीं, जो मेरे टीचर ने बोला है तो मैं यहीं पर रहूंगा और उनके आने के बाद ही जाऊंगा, उनसे मिलने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। इसके बाद टेप्लो है वो टीचर के बारे में और बताता है कि जो मिस्टर क्रोकर हैरिस है वो एक नट की तरह से बिल्कुल सिकुड़े हुए हैं अंदर से, मीन्स बहुत ही कमजोर से हैं, पतले से हैं, परंतु स्ट्रिक्ट बहुत हैं। वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट मीन्स क्या है, जो दूसरों को प्रताड़ना करके जिसको आनंद प्राप्त होता है, खुशी मिलती है, मीन्स दूसरों को तकलीफ देकर के प्लेजर की अनुभूति करने वाला टीचर नहीं है। स्ट्रिक्ट है परंतु उसे मजा नहीं आता है, आनंद नहीं आता है जब दूसरों को तकलीफ देता है उस टाइम। तो कहता है कि मेरा टीचर सैडिस्ट नहीं है, वो दुबला पतला है, स्ट्रिक्ट है, रूल रेगुलेशंस फॉलो करता है, डिसिप्लिन को फॉलो करता है, परंतु सैडिस्ट नहीं है। ऐसे टेप्लो 3 बार बोलता है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस वो सैडिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब और अधिक फ्रैंक को ईर्ष्या फील होती है कि बच्चा है वो अपने टीचर की तारीफ कर रहा है, जबकि वो सोचता है कि मेरे स्टूडेंट शायद मेरे ऊपर इतना बिलीव नहीं करते हैं जितना टेप्लो है वो क्रोकर हैरिस में शो कर रहा है। अब दोनों बातें कर रहे हैं क्रोकर हैरिस के बारे में। उसी टाइम मिली जो कि क्रोकर हैरिस की वाइफ है वो वहां पर आ जाती है। अब दोनों एक साथ उसको देखते हैं कि मिली खड़ी हुई थी वहां पर। अब टेप्लो डर जाता है, सोचता है कि इसने हमारी बातें सुन ली हैं और ये मिस्टर क्रोकर हैरिस को बता देगी क्योंकि उसकी वाइफ है, और फिर वो मेरे को और अधिक पनिशमेंट देंगे और कोई सजा देंगे। डर जाता है और टेप्लो बार बार फ्रैंक से पूछता है कि इसने हमारी बात तो नहीं सुनी है, इसने हमारी बात तो नहीं सुनी है। और मिली है वो खड़ी रहती है, फिर उनके और नजदीक आ जाती है, जिसके उसके पास में एक टोकरी ले रखी उसने, और वह जाने के लिए आई थी कहाँ पर, मेडिसिन लेने के लिए, बाजार जाने के लिए निकली थी। अब मिली टेप्लो को बोलती है तुम जाओ एंजॉय करो। टेप्लो मना कर देता है तो मिली बताती है कि वो जो ऑफिशियल काम है उनके उनमें बिजी हैं, क्रोकर हैरिस वो नहीं आने वाले, देर से आएंगे, तुम यहाँ से जाओ। अब टेप्लो मना कर देता है तो वो टेप्लो को कहती है तुम मेरे लिए मेडिसिन बनवा करके लेके आओ। वो एक मेडिसिन की रेसिपी उसने ले रखी है और कहती है कि तुम औषधालय जाओ, मेडिकल स्टोर जाओ और वहां पर जा करके ये मेडिसिन तैयार करके ले करके आओ। उसका पर्पज ये है कि टेप्लो यहाँ से जाए, इंजॉय करे बाहर। बच्चा है, स्कूल में है तो वो इंजॉय नहीं कर पा रहा है। उसने बोला भी कि अगर क्रोकर हैरिस मुझे पनिशमेंट नहीं दी होती, क्रोकर हैरिस ने मुझे पनिशमेंट, तो मैं अब खेल रहा होता। तो मिली इसी पर्पज से उसको भेज देती है। टेप्लो जाने को खुश नहीं है तो मिली कहती है ठीक है, यदि तुम्हारे टीचर आ जाएंगे तो सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगी, तुम्हें कोई भी कुछ कहने वाला नहीं होगा। इस बात को कहने के बाद टेप्लो है वो चला जाता है दवा लेने के लिए, वहां से चला जाता है और प्ले खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो चारों करेक्टर मेन हैं कि आप करेक्टर स्केच लिखे, क्रोकर हैरिस का, फ्रैंक का, टेप्लो और मिली। और दूसरा मेन क्वेश्चन बनेगा मिस्टर क्रोकर हैरिस और फ्रैंक को कंट्रास्टिंग का। कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस एंड फ्रैंक। दोनों में क्या क्या सिर्फ सिमिलरिटी एक है। सिमिलरिटी क्या है कि वो सेम स्कूल में टीच करते हैं, बाकी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एज में अपोजिट है, व्यूज में अपोजिट है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने में अपोजिट है, और दोनों की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है। जो सब्जेक्ट है वो भी अलग है। यहाँ पर क्रोकर हैरिस और लिटरेचर के टीचर हैं, साहित्य पढ़ाते हैं, और क्लास है वो उनकी लोअर 5th क्लास है, जबकि फ्रैंक है वो साइंस पढ़ाते हैं और उनकी क्लासेज है वो हायर क्लासेज हैं और उनकी साइंस में रुचि नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि साइंस के टीचर होते हुए वो कहते हैं मेरी साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह हम जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट का क्वेश्चन है वो भी तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द समरी ऑफ दिस प्ले। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।